Welcome students in biology class. In previous video we described about the gametogenesis process in case of male and in case of female. Today we discuss the another topic that is very important, that is the menstrual cycle. Okay, which occurs in monthly in case of female. First thing, the beginning of menstruation or first menstruation is called the menarche. फर्स्ट टाइम जब menstruation होता है, दिस इज commonly known as the menarche, and the beginning of menstruation varies. It is usually occur between 12 to 15 years. या 12 to 15 years की ओल्ड जब गर्ल्स होती है तो उसमें ये स्टार्ट होता है. दैट इज क्लियर. एंड दिस टॉपिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द release of mature egg cells during this periods, and that is also helpful for the fertilization for which are responsible for the development of embryo. That is clear. Okay, let us start the menstrual cycles. Menstruations occurs in human, apes and old world monkeys. ठीक, ह्यूमन बींग्स में, एप्स में, और वो जो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज हैं, गोरिल्ला एप्स, ठीक है, उन सब में मेनिस्ट्रेशन होता है. मेनिस्ट्रेशन इज ब्लीडिंग फ्रॉम द यूटेरस ऑफ एडल्ट फीमेल एट इंटरवल ऑफ 1 लूनर मंथ. ठीक है, इंटरवल मतलब एवरी मंथ के इंटरवल के बाद देयर इज द मेनिस्ट्रेशन इज ए ब्लीडिंग फ्रॉम. ठीक, ब्लीडिंग फ्रॉम द यूटेरस के थ्रू रिलीज होता है. In human female, the menstruation is the repeated at an average interval of about 28 to 29 days, and the cycle of events is starting from one menstruation till the next one is called the menstrual cycle. Okay, in case of human female जो होता है repeated होता है near about 28 to 29 days. And what is the menstruation cycle? The cycle of events, जो events से होता है आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम. तो द साइकिल ऑफ इवेंट इज स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेनिस्ट्रेशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द मेनिस्ट्रल साइकिल. वन ओवम इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच मेनिस्ट्रल साइकिल. प्रत्येक मेनिस्ट्रल साइकिल के बीच में एक मैच्योर एग से रिलीज होता है. एज स्टेटेड, above menstrual cycle generally start between 12 to 15 years and continue until about 45 to 50 years. ये 12 to 15 years से स्टार्ट होता है और कब तक चलता है? 45 to 50 years तक. It is regulated by certain hormones, some of which are secreted by the pituitary glands. या कुछ हार्मोन के थ्रू कंट्रोल होता है which are secreted from the pituitary glands. The pituitary gland is stimulated by releasing factor produced in the hypothalamus. ठीक है, hypothalamus में secrete करता है. The hormones produced by the pituitary gland influence the ovaries. ये क्या करता है? जो secrete होता है pituitary glands hypothalamus के थ्रू जो कंट्रोल होता है, ये क्या करता है? द इन्फ्लुएंस द ओवरीज, ओवरी को इन्फ्लुएंस करता है. द हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय द ओवरीज इफेक्ट द वॉल ऑफ यूटेरस. और इसके कारण जो ओवेरियन हार्मोन्स होता है वो सिक्रेट होता है एंड दे अफेक्ट द वॉल ऑफ यूटेरस. जो यूटेरस वॉल है उस पर ये अफेक्ट डालता है. अब मेनिस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रहे थे, तो इन केस ऑफ मेनिस्ट्रुअल साइकिल्स कंसिस्ट ऑफ 4 फेजेस. इसमें 4 फेजेस होते हैं जिस पर यह डिपेंड है. फर्स्ट फेज दैट इज नोन एज द मेनिस्ट्रल फेज. ओके, सेकेंड फेज दैट इज नोन एज द प्रोलिफेरेटिव फेज, और दिस इज ऑल्सो नोन एज द फॉलिकुलर फेज.
That is clear. Third one, that is the ovulatory phase. And last, fourth one, that is the luteal phase, or this is also known as the secretory phase. Okay, so in case of menstrual cycle, there are 4 phases occurs. Okay, you see here the 4 phases that is given here. साइकिल बिगिंस ईयर, यहाँ से साइकिल स्टार्ट होता है, ठीक, 1 2 3 4 दैट इज गिवन ईयर. दिस इज द फेज दैट इज गिवन ईयर. मेंस्ट्रुअल फेज है 1 to 5 days. ओके, 6 to 14 days. This is second phase is proliferative phase, or this is known as the follicular phase. Clear? And after them, this is the after 15, this is the phases occurs here, means that is the corpus luteum begins to degenerate. यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कार्पस लुटियम नियर अबाउट 25 या 25-6 के नियर अबाउट जो कार्पस लुटियम होता है डिजेनरेट हो जाता है. डिजेनरेट होकर के there is the another phase or started, this is known as the secretory phase. ये secretory phase start हो जाता है, means there is 4 phases occurs here. Clear हो गया? Okay. Okay, listen. What happen in case of menstrual phase? This is also known as the bleeding phase or menses. इसको हम bleeding phase भी बोलते हैं या menses कहते हैं. In a 28 days menstrual cycle, the menses takes place on cycle days 1st to 5th. ठीक है, जो menstrual phase होता है 1st to 5th days तक ये अकर होता है. The production of LH from the anterior lobe of pituitary gland is considerable reduced. इस फेज में जो प्रोडक्शन होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का थ्रू द एंटीरियर पिट्यूटरी वो रिड्यूस हो जाता है. द विड्रॉल ऑफ दिस हार्मोन्स कॉजेज डिजेनरेशन ऑफ कॉर्पस लुटियम. इस हार्मोन्स की डिफिशियंसी से, ठीक है, जो कॉर्पस लुटियम होता है वो डिजेनरेट हो जाता है. एंड देयरफॉर प्रोजेस्ट्रॉन प्रोड्यूस इज रिड्यूस, जिसके कारण जो ओवेरियन हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन होता है दैट इज आल्सो रिड्यूस इन दिस फेज. प्रोडक्शन ऑफ ओएस्ट्रोजन इज आल्सो रिड्यूस इन दिस फेज. अनदर जो ओवेरियन हार्मोन है ओएस्ट्रोजन्स दैट इज आल्सो रिड्यूस इन दिस फेज. द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस ब्रेक डाउन एंड मेंस्ट्रुएशन बिगिंस. और इसके बाद जो इंट्रोमेट्रियम लेयर होता है यूटेरस वॉल का इंट्रोमेट्रियम लेयर होता है वो ब्रेक हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है. एंड मेंस्ट्रुएशन बिगिंस मीन्स स्टार्ट होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है. द सेल्स ऑफ इंट्रोमेट्रियम सिक्रेशन ब्लड एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवम कंसिस्ट द मेंस्ट्रुअल फ्लो. ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उसमें इंट्रोमेट्रियम जो लेयर ब्रेक डाउन होता है, ब्लड वेसल्स जो विच आर प्रेजेंट इनसाइड देम एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवम, ये सभी ब्रेक करके मेंस्ट्रुअल फ्लो के रूप में बाहर निकलते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज. दैट इज क्लियर. सेकेंड फेज दैट इज द फॉलिकुलर फेज और दिस इज ऑल्सो नोन एज द प्रोलिफरेटिव फेज. दिस फेज यूजुअली इंक्लूड साइकिल डेज 6 to 13 और 14. या आफ्टर मेंस्ट्रुअल फेज के बाद स्टार्ट होता है, मीन्स 6 to 13 डेज तक और 14 डेज. इन 28 साइकिल, 28 डे का यदि साइकिल है तो उसमें यह 6 to 13 और 14 डेज तक रहता है.
The follicle stimulating hormones means FSH secreted by anterior lobe of pituitary gland stimulate the ovarian follicles to secrete estrogens. ठीक है, जो FSH मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है विच आर सीक्रेट फ्रॉम द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सीक्रेट होता है, ये क्या करता है, स्टिमुलेट द ओवेरियन फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है किसके लिए, फॉर सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन्स, फीमेल हार्मोन्स के लिए। एस्ट्रोजन्स स्टिमुलेट द प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरिन वॉल। ये क्या करता है, एस्ट्रोजन स्टिमुलेट करता है प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरिन वॉल को अगेन फॉर्मेशन में सहायक करता है। द एंडोमेट्रियम बिकम थिकर बाय रैपिड सेल मल्टीप्लिकेशन। इसके कारण जो एंडोमेट्रियम जो लेयर होता है वो थिकर हो जाता है, बहुत मोटा हो जाता है ड्यू टू द रैपिड सेल मल्टीप्लिकेशन, सेल मल्टीप्लिकेशन के कारण। एंड दिस इज accompanied by the increase of uterine glands and blood vessels। इसके कारण जो uterine glands और blood vessel increase हो जाता है in this sides means uterus wall in endometrium layer। clear? You see the diagram, this is the menstrual phase 1 to 5 days जो बता रहे थे। सेकेंड है आपका फॉलिकुलर फेज फ्रॉम 6 to 13 और 14 डेज तक। ठीक है, इस कंडीशन में हम बताया आपको कि इसमें जो FSH का सिक्रेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है एज वेल एज द LH, दोनों का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगता है, जिसके कारण जो ओवेरियन हार्मोन्स हैं दैट इज आल्सो सीक्रेटेड लार्ज अमाउंट्स हियर, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन्स। एस्ट्रोजन का सिक्रेशन इस कंडीशन में ज़्यादा होता है। दैट इज क्लियर? थर्ड फेज आते हैं लुटियल फेज और सेक्रेटरी फेज, सॉरी ओवुलेटरी फेज। Both LH and FSH attain a peak level of the middle of cycle. You see the diagram? इस डायग्राम में देखिए दोनों LH and FSH दोनों जो मिडिल डे होता है उसमें दे अटेन द पीक लेवल, सबसे हाईएस्ट लेवल ये अटेन कर लेता है। रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH इंड्यूसेस रप्चरिंग ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। ज़्यादा मात्रा में LH के सिक्रेशन के कारण जो ग्रेफियन फॉलिकल होती है वो रप्चर कर जाती है एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ ओबम, जिसके कारण यह ओबम रिलीज हो जाता है फ्रॉम ग्रेफियन फॉलिकल से। एंड दिस टाइम दिस इज द सेकेंडरी oocytes इज रिलीज्ड। जो एक होता है वो सेकेंडरी oocytes का होता है। एंड दिस इज द कॉल्ड द ओवुलेशन, मीन्स release the mature egg cell from the ovary is known as the ovulation. That is clear? In fact, LH causes ovulation. तो इसके बेस पर हम कह सकते हैं कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है दिस द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवुलेशन। दैट इज क्लियर? देखिए ग्रेफियन फॉलिकल से, ठीक, ये रप्चर कर जाता है बिल्कुल 14 डेज के बाद, ये 28 डे का साइकिल है, तो ठीक है ब्रेक डाउन हो जाता है और इसमें से मैच्योर एग सेल रिलीज होता है। द प्रोसेस दैट इज गिवन हियर इज द ओवुलेशन। और इस ड्यूरेशन में LH और FSH दे अटेन द मैक्सिमम पिक्स, हायर अमाउंट में पिक अटेन कर लेते हैं, मतलब दैट इज रिलीज लार्ज अमाउंट्स। दैट इज क्लियर? और इसके कारण जो ओवेरियन हार्मोन्स है एस्ट्रोजन दैट इज आल्सो अटेन द पिक हियर। लास्ट फेज की बात करें लुटियल फेज और दिस इज आल्सो नोन एज द सेक्रेटरी फेज। द फेज यूजुअली इंक्लूड्स साइकिल डेज 15 to 28 डेज, या
मेंस्ट्रुअल साइकिल का 15 to 28 डेज जो होता है वो आपका लुटियल फेज होता है। द ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स मीन्स LH इज सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स। LH कॉजेज ओवुलेशन, LH के कारण ओवुलेशन हो रहा था। द रिमेनिंग सेल ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स आर स्टिमुलेटेड बाय द LH टू डेवलप कार्पस लुटियम। जो ओवेरियन फॉलिकल का एग रिलीज करने के बाद जो पार्ट बचा होता है, इसके कारण वह डेवलप्ड हो जाता है कार्पस लुटियम में। ओके, यू सी हियर जो ओवेरियन फॉलिकल ये बचा हुआ है ये कन्वर्ट किस में हो गया, डेवलपिंग इनटू द कार्पस लुटियम। ओके, द कार्पस लुटियम सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। अब जब कार्पस लुटियम का फॉर्मेशन होता है तो उस कंडीशन में जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है उसका लेवल इंक्रीज कर देता है, मीन्स दैट इज सीक्रेटेड लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। यू सी हियर द थ्रू द डायग्राम, क्लियर। प्रोजेस्टेरॉन स्टिमुलेट द यूटेरिन ग्लैंड्स टू प्रोड्यूस इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ वाटर म्यूकस। जो यह प्रोजेस्टेरॉन होता है यूटेरिन ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है फॉर द प्रोड्यूस इंक्रीज अमाउंट ऑफ वाटर म्यूकस। वाटरी म्यूकस को सिक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करता है। ड्यूरिंग द सेक्रेटरी फेज देयर इज आल्सो सिमिलर इंक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ वाटरी म्यूकस बाय द वेजिनल ग्लैंड्स एंड बाय द ग्लैंड्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, और सेक्रेटरी फेज के समय मीन्स मेंस्ट्रुअल फ्लो के समय या वाटरी म्यूकस को रिलीज करने के लिए वेजिनल ग्लैंड्स एज वेल एज द फैलोपियन ट्यूब को स्टिमुलेट करता है। प्रोजेस्टेरॉन इज आल्सो इसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोथेलियम, या एंडोथेलियम लेयर को भी मेंटेन करता है। सच एन एंडोथेलियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। यदि फर्टिलाइज्ड ओवम आ रहा तो यही एंडोथेलियम लेयर जो होता है इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी, और अदर इवेंट जो प्रेगनेंसी को होता है वो मेंटेन करता है। इन द अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता, द कार्पस लुटियम डीजनरेट्स। जो कार्पस लुटियम फॉर्म हुआ था वो डीजनरेट हो जाता है। दिस कॉजेज disintegration of the endothelium leading to menstruation marking a new cycle। ठीक है, तो जो एंडोथेलियम लेयर है वो लीड डिग्रेड हो जाता है एंड दैट स्टार्ट द menstrual flow, मीन्स दैट इज मार्किंग द न्यू साइकिल, मीन्स न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाता है। Thus, after the secretory phase, the menstrual phase begins. Secretory phase के बाद menstrual phase start हो जाता है। Menstruation is often described as weeping of uterus for lost ovum। ठीक है, menstruation को यह भी कहा जाता है दिस इज द वीपिंग ऑफ यूटेरस, यूटेरस का रोना भी कहते हैं, बिकॉज द लॉसेस ऑफ ओवम, ओवम को लॉस होने का उसको कहते हैं। दैट इज क्लियर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स। दिमाग खराब हो गया।